Hello and namaskar. Welcome to NCERT's live interaction. This is Simran Singh. You all are watching us through PMeVIDYA channel number 11, or you can also connect with us through our YouTube channel that you all know is NCERT Official. Now it's 2 p.m. on your watch and it's time for our special session of class 11th. So the subject is Human Ecology and Family Sciences, abbreviated as HEFS. And the topic that we'll be discussing in this session is health and wellness in adulthood. Well, today's topic remains very important and important more than ever, especially after the unprecedented crisis that the world is going through. And to make this learning process and this session more conducive for all our viewers, we are also joined by an expert in the studio. We have with us Dr. Veenu Wadhwaji. Namaskar, ma'am. Namaskar. Welcome to NCERT. Ma'am is Associate Professor at Institute of Home Economics from University of Delhi. She has joined in from the studio. Now, as it's our live interaction, if you have any questions, you have any doubts, you have any queries, any of the feedbacks or messages for us, then do reach out to us in the comment box of NCERT Official. That is for all our viewers. Besides, we also have our contact number for you on the screens. That is 8800440559. And as the session is for class 11th, so our mail ID for class 11th is dth.class11@ciet.nic.in. So Dr. Veenu, before beginning this session, I have a little question for you. As we are discussing about this subject, health and wellness in adulthood, why is it so important for our students to study this? Okay. I think, studying adulthood and studying about health in adulthood is what is the entire focus of today's talk. And also what we do need to understand is that, we are normally associated with this quote, which is health is wealth. Right? And we can broadly understand this perspective that if health is good, our mental, social, physical well-being are all going to get us to perform well and reach our highest potentials and our goals. So therefore, understanding this whole concept of what is health, what is wellness, how do we get there, are all going to be really important issues that we should deliberate, discuss and understand in good detail. So therefore, the entire perspective of relating to what is health and what are the things that should be done to get to good health are the focus of today's conversation. Well, that's great, and without taking much of your time, I think quickly we should proceed in with the session. Thank you so much. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैसा कि आपने सुना हेल्थ और वेलनेस के बारे में, और फोकस आज का रहेगा अडल्टहुड पर। हम बच्चों में हेल्थ की बात हमेशा करते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, एडोलेसेंस तक पहुंचते हैं, उस समय में भी हम हेल्थ की बहुत बात करते हैं। बट समझना ये ज़रूरी है कि वहाँ से शुरू होकर पूरी लाइफ, अडल्टहुड शुरू होते हुए लेट अडल्टहुड तक पहुंचते हुए भी फोकस ये होना चाहिए कि हम हेल्थ को मेंटेन करें और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल स्टेबिलिटी और फ़िज़िकल वेलबींग को आगे बढ़ाते रहें। इन सब बातों को समझने के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इंडिया का हेल्थ स्टेटस समझें और समझें कि आज हम किस मोड़ पे हैं और हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ को आगे लेते हुए चलना है। हम सब ये जानते हैं कि इंडिया सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत पॉपुलेशन है इंडिया में, और यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 70 साल है। इसका ये मतलब हुआ कि the lifespan of an individual can go up to 70 years. It can be 70 to 72 years, whether it is male or female. Also, जब हम बात करते हैं mortality की, अगर हम 5 साल से कम उम्र के बच्चों को देखें तो हर 1000 बच्चों में कम से कम 34 बच्चों की मृत्यु 5 साल से पहले हो जाती है, जो कि अच्छा आंकड़ा नहीं है। हमें
शुरू से ही हेल्थ पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है, ताकि जब तक बच्चे अडल्टहुड की तरफ पहुंचते हैं तो उनका हेल्थ स्टेटस ऐसा हो कि वो अपनी आगे आने वाली जनरेशन को भी सपोर्ट कर सकें और अपनी खुद की जनरेशन को भी सपोर्ट कर सकें। तो आजकल ये देखा गया है, जो अभी स्टडीज़ चल रही हैं, जो अभी WHO का फोकस है, वहाँ ये देखा गया है कि जो पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हुआ करती थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस बढ़ते थे और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स आ जाती थी, वो सिचुएशंस अब चेंज होती जा रही हैं। और ये सिचुएशंस चेंज होके नॉन कम्युनिकेबल या ऐसी डिजीज़ेस पर आ गई हैं जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस मानी जाती हैं, जैसे हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज़ेस। ऐसी प्रॉब्लम्स अब ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लग गई हैं यंग अडल्ट्स को भी, जो कि पहले कभी इस ब्रैकेट में नहीं आते थे। पहले ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जब भी बात होती थी तो सोचते थे जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो ही ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लेकिन अब सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि यंग अडल्ट्स में भी हम स्ट्रेस के कारण हाइपरटेंशन देखते हैं, हार्ट डिजीज़ेस देखते हैं, डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन इशू हो गया है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आ गई है, और ये सब इन चीज़ों से कनेक्टेड हैं जो कि डाइट रिलेटेड हैं। हमारी डाइट अब इस प्रकार की हो गई है कि हमारा झुकाव टोटली जंक फूड की तरफ चला जाता है। घर का बना हुआ पौष्टिक खाना कोई नहीं खाना चाहता। बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, जितने मर्ज़ी ऐसी चीज़ें हम बच्चों के सामने रखते हैं, ना सिर्फ बच्चे, एडोलेसेंट्स, यंग अडल्ट्स भी यही खाना प्रेफर करने लग गए हैं आजकल, और इसका पूरा असर बॉडी पर जाके पड़ता है, क्योंकि जो फैट कंजम्पशन और सैचुरेटेड फैट कंजम्पशन बढ़ गई है, उसकी वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज़ एक्सरसाइज तो है नहीं आजकल। सब कुछ एक डेस्क के सामने बैठकर एक मोबाइल फ़ोन के द्वारा सब कुछ अचीव हो जाता है। यहाँ तक कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो बाहर एक ज़माने में बच्चे भाग के खेला करते थे, वो सारी एक्टिविटीज़ भी बंद हो गई हैं। सब कुछ मोबाइल पे जाके होना शुरू हो गया है। तो क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है और उसकी कैलोरी बर्निंग नहीं हो रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा अडल्ट्स को इम्पैक्ट करने लग गई हैं। और क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है और डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो प्रॉब्लम्स जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़कर आगे आना शुरू हो गई हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ेस वाली प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं अभी। एड्स से प्रॉब्लम है, आजकल का पैंडेमिक देख लीजिए, कोविड-19 से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दीज आर ऑल इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रॉब्लम्स। लेकिन ये कोविड-19 को छोड़ दीजिए, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम्स अब और से ज़्यादा और कम होती जा रही हैं और लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक और चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि जब हम अपना हेल्थ स्टेटस इंडिविजुअल का बढ़ाना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं, हमें साथ में ये भी देखना है कि ना सिर्फ इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव होगा, एक पूरे नेशन का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव होता है और इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव होता है अगर सब इंडिविजुअल, सब व्यक्ति अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। बिकॉज़ अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसकी देखभाल के लिए जो फंड्स यूज़ होते हैं, जो फाइनेंसेस यूज़ होते हैं, सिर्फ फैमिली के नहीं होते, गवर्नमेंट के भी होते हैं। बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड एंड हेल्प टू मेक श्योर दैट द हेल्थ स्टेटस ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द कंट्री इज़ इन अ गुड स्पेस। तो अगर हेल्थ इश्यूज़ कंट्री में बढ़ते जाएंगे तो इकोनॉमिक ड्रेन कंट्री का भी होगा, फैमिली का तो होगा ही, एंड दैट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द फैमिली एंड फॉर द नेशन। सो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम फिज़िकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें,
मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें और हेल्थ को इस तरह से प्रमोट करें कि जितना नॉर्मल लाइफ कोई जी सकता है उतना वो जीने की कोशिश करें। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक वर्ड जो बार बार दोहराया गया है वो है हेल्थ। अब समझना ये है कि हेल्थ है क्या। जब हम हेल्थ की बात करते हैं या ये बात करते हैं कि हेल्दी कौन है, तो हेल्दी कौन है के कॉन्सेप्ट में ये आंसर्स मिलेंगे आपको कि हेल्दी इंडिविजुअल वो है जो फिज़िकली एक्टिव हो, जो थकता ना हो, जो चेयरफुल रहे सारा समय, जो इन्फेक्शन से दूर रहता हो, उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि इन्फेक्शंस उसको जल्दी असर ना कर पाएँ। अब अगर ये सब हेल्थ है तो इस सब को पाने के लिए हमें करना क्या है? इन सब चीज़ों को पाने के लिए कुछ डूज हैं, क्या करना चाहिए, कुछ डोंट्स भी हैं, क्या ज़रूर ध्यान रख के नहीं करना है। डूज में ऑब्वियसली हेल्दी खाना है, हेल्दी खाने में फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, दालें हैं, राइस, वीट, जो हमारे इंडिया में इतने सारे तरह तरह के ग्रेन्स हैं जो कि बहुत हेल्दी हैं, वो आ जाते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जितना खाना आप कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही आपको फिज़िकल एक्टिविटी के द्वारा बर्न भी करना है, नहीं तो क्या होगा, वो सारा बॉडी में जाके बैठता जाएगा एंड इट विल लीड टू ओबेसिटी इश्यूज़, है ना। सो वी हैव टू मेक श्योर कि खाना अच्छा हो। जो आपकी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की अगर आप थाली देखते हैं तो उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स भी होने चाहिए। और ये सब चीज़ें हमारे इंडियन खाने में भरपूर हैं, चाहे वो दालें हैं या नॉन वेजिटेरियन खाना है या हमारे जितने ग्रेन्स हैं उन सब से जो न्यूट्रिशन मिल सकता है वो हेल्दी न्यूट्रिशन माना जाता है। एंड थाली जितनी कलरफुल होगी उसका मतलब उतने ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों से विटामिन ए मिलेगा, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब चीज़ें एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खूब सारा पानी पिया जाए। पानी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू मेक द बॉडी हेल्दी एंड टू मेक श्योर कि बॉडी में टॉक्सिन्स ना रहें जो कि फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को हार्म कर सकते हैं। ये तो डूज हो गए। अब हम देखते हैं कि डोंट्स क्या हैं। इससे पहले डॉक्टर वीनू कि हम डोंट्स की तरफ बढ़े, आपने कहा कि मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं, तो क्या हमारी जो डाइट है या जिस तरह का हमारा कंजम्पशन है इन टर्म्स ऑफ फूड वो हमारे मानसिक तनाव का भी कारण बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बिकॉज ये सारा एक साइकिल है। आप उसको एक साइकिल की तरह समझिए कि जितना हमारी बॉडी को फिज़िकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना चाहिए उतना हम प्रोवाइड करते हैं, बट अक्सर हम स्वाद से या लालच से या किसी भी कारण से कई बारी ज़्यादा खा लेते हैं। बिल्कुल, कई बारी ज़्यादा खा लेते हैं, फिर हम उसको बर्न नहीं करते। बर्न करने का क्या तरीका है? खूब सारी फिजिकल एक्टिविटी। जब हम उसको बर्न नहीं करते, दैट कैन लीड टू ओबेसिटी। ओबेसिटी विल लीड टू लेसर फिजिकल एक्टिविटी और वो पूरा साइकिल विल टेक अस टू अ सिचुएशन जहाँ कॉन्फिडेंस लेवल्स कम हो जाते हैं, एंग्जाइटी और स्ट्रेस आ जाता है, एंड दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज फार एज मेंटल हेल्थ इज कंसर्न। नाउ इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, पर बिल्कुल शुरुआत में हम कभी कभी से नहीं समझ पाते। बिल्कुल, और ये बेसिकली हमें ये समझना है कि हमें एक लाइफस्टाइल चेंज लाना है, जो कि कई बारी हम शुरू तो करते हैं बट प्रोसेस में वो कई बार इतना बोरिंग हो जाता है कि हम सोचते हैं छोड़ो, आज तो छोले भटूरे खा लेते हैं, और वो आज तो छोले भटूरे खा लेते हैं वाला प्रोसेस ऐसा शुरू होता है कि उसको फिर स्टॉप करना मुश्किल हो जाता है। सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस ऑलवेज। जंक खाइए, उसके बिना तो आजकल की लाइफ ही नहीं है, बट उसको इस तरह से करिए कि you control the quantities of food that should fall in the don't category, right? And that will take us to understanding what are the don'ts. देखो, too much fat is a don't, too much salt is a don't, too much sugar बिल्कुल नहीं खानी चाहिए,
और बल्कि फैट फिर भी ठीक है, शुगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है एज फार एज द ह्यूमन बॉडी इज़ कंसर्न्ड। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, चिप्स का पैकेट खोला, पूरा चिप्स का पैकेट खा गए, उसमें ट्रांस फैट्स भी हैं, उसमें खूब सारा सॉल्ट भी है, बहुत सारा फैट है, और ऐसी चीज़ें हैं जिससे न्यूट्रिशन तो कोई मिल ही नहीं रहा है ना। तो इन चीज़ों को कंज्यूम तो करना चाहिए, बट हमेशा एक बैलेंस या एक कंट्रोल अपने आप पे डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से या फिज़िकल फिटनेस पर्सपेक्टिव से हमें करने की ज़रूरत है, वो हम आराम से बैलेंस कर पाएँ। सो गुड फूड, गुड हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, इट्स लाइक एक हाथ में बर्गर, एक हाथ में सेब। So you're constantly going to try to, find a balance. ज़्यादा टाइम नज़र तो बर्गर की तरफ ही जाएगी, पर उस नज़र को हमें घुमा के एप्पल की तरफ पे ज़्यादा बारी लाना पड़ेगा। So that is the mindset that we have to bring, and that is the mindset that we have to, get ourselves to also believe in. अगर हम उसको believe करेंगे तो वो करना आसान हो जाता है। Normally सब डाइट्स शुरू करते हैं, पर बिलीफ से नहीं करते हैं। इसलिए शुरू करते हैं कि किसी ने बोला कि ऐसे करो तो तुम्हारा वेट कम हो जाएगा, या ऐसे करो तो तुम ज़्यादा फिज़िकली फिट हो जाओगे। अगर हम मन से फूड्स को समझकर डाइट प्रोसेस करना शुरू करें, तो एक वो लाइफस्टाइल चेंज अपने आप बन जाएगा, एंड इट विल हेल्प अस अचीव द हेल्थ एंड फिटनेस cycle that we want to get at. Right? So that is, this entire perspective of do's and don'ts, जो हमें constantly एक balance, एक scale बना के रखना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि do's वाला पलड़ा हमेशा भारी रहे, don'ts वाला भारी ना हो, क्योंकि don'ts वाला अगर भारी हो जाएगा तो हमें physical exercise ज़्यादा करनी पड़ेगी, और वो तो किसी का करने का मन होता नहीं है, unless you're pushed or unless there is some kind of self motivation. So that is what we have to look at. Up to understand this whole concept of weight and what the body structure should be and what is good body weight and so on, anthropometric indicators बनाए गए हैं, and one of the most important anthropometric indicators is what is called body mass index. अब ये body mass index होता क्या है? It is defined as the weight in kilograms divided by the square of the height in meters. So जो भी body का weight है और जो भी body की height है, body की height का square करके बॉडी के वेट को उससे डिवाइड करके एक फिगर बनता है। वो फिगर को बॉडी मास इंडेक्स या BMI बुलाया जाता है। अब ये BMI है क्या और इससे हमें क्या पता चलता है? एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि अगर एक अडल्ट का वेट लगभग 70 किलो है और उसकी हाइट 1.75 मीटर्स है, इसके थ्रू अगर हम ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मूला के थ्रू अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो BMI आता है 22.9। अब साथ में जो टेबल है, आप साथ में इस टेबल को देखिए, 22.9 जो BMI है वो बिल्कुल एवरेज वेट वाला BMI है। अब मान लीजिए यही BMI अगर 16 के आसपास होता या 18 के आसपास होता, तो दिस वुड बी एन इंडिकेशन कि अंडरवेट है, एंड ऑब्वियसली अंडरवेट होगा तो फिज़िकल फिटनेस कम है, डाइट कम है, और उसकी वजह से जो एक्टिविटी लेवल होगा या जो थकान का स्टेटस होगा वो इंडिविजुअल में ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म करना शायद थोड़ा मुश्किल लगे ऐसे व्यक्ति को। और अगर यही BMI अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर ये 35 या 40 के आसपास का BMI बनता है, दिस विल टेक यू टू ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या? नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो दैट विल अगेन, लाइक वी टॉक्ड ऑफ राइट नाउ, विल अफेक्ट द मेंटल हेल्थ।
because there are lots of things that every individual wants to do, बट अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे, और वो फिर से वो एक विशियस साइकिल बन जाएगा कि ना एक्टिविटी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, एंजाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, और फिर उनको कोप करने में द इंडिविजुअल माइट एंड अप ईटिंग मोर। तो एक ये विशियस साइकिल बन जाता है जिसको बहुत ध्यान रख के हमें बहुत ध्यान से ये देखना है कि हम कितना खाना कंज्यूम कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली फिजिकल एक्टिविटी बॉडी में होनी चाहिए। अब अगर हम यही एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर की तरफ दोबारा ध्यान दें, ये जो आपने अभी टेबल देखा, ये टेबल इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया गया है। अगर बीएमआई किसी वेस्टर्न कंट्री के लिए कैलकुलेट करना होगा तो बिल्कुल अलग फिगर्स बनेंगे, क्योंकि जेनेटिकली सारे इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं। हमारी एथनिक या रेस फैक्टर्स की वजह से हम लोग एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें, बहुत ऊंचे लंबे लोग होते हैं, वेट भी उनका ज़्यादा होता है, उनका बॉडी बिल्ड हमारी इंडियन बॉडी बिल्ड से बहुत फ़र्क होता है। तो ऐसे केसेस में वहाँ की बीएमआई कैलकुलेशंस बिल्कुल डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू ये कैलकुलेशंस जो इंडिया की पॉपुलेशन के लिए बनाई गई हैं। ओके, सो इन इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया जा सकता है दैट आर यू इन द एवरेज वेट कैटेगरी और आर यू ओवरवेट। अगर ओवरवेट हो तो भी उसको ठीक करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, अगर अंडरवेट हो तो भी उसको इम्प्रूव करने के लिए एक्टिव चीज़ें करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें करते हुए वी विल बी एबल टू इंश्योर गुड हेल्थ, गुड फिजिकल फिटनेस एंड गुड एक्टिविटी लेवल्स इन द इंडिविजुअल। Well, I think it is a easy way to know whether you are healthy or not. आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, BMI जो है कैलकुलेट करके बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। एंड अगर हम कंसेंशियस लोग हैं और अगर हमने देख लिया है कि हमारा BMI ओवरवेट की तरफ जा रहा है, तो वी कैन इमीडिएटली स्टार्ट लुकिंग एट क्या शेड्यूल बनाया जाए, या मैं किस एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करना शुरू करूं कि मैं अपना BMI एवरेज लेवल पे लेके आऊं। एंड द सेम वे अगर मैं देख रही हूँ कि मेरा BMI मुझे अंडरवेट कैटेगरी में डाल रहा है, तो मैं किस प्रकार के हेल्दी फूड्स खाऊं कि मैं दोबारा एवरेज कैटेगरी में आ जाऊं। सो एवरेज कैटेगरी में रहना बहुत ज़रूरी है, और ऑब्वियसली वो हेल्दी भी है, राइट। सो इस जिस फिटनेस की हम बार बार बात कर रहे हैं, उस फिटनेस का मतलब क्या है। अब आप देखिए, हमने समझा हेल्थ क्या है। हेल्थ को समझने के लिए हमने समझा कि बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके हम ये देख सकते हैं कि हम हेल्थ के किस स्टेटस पे हैं, और हमें उसको इम्प्रूव या मॉडिफाई या रेक्टिफाई करने के लिए क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, और दैट विल टेक अस टू फिटनेस। अब फिटनेस क्या चीज़ है, दैट इज़ द नेक्स्ट टर्म जो हमें समझने की ज़रूरत है। जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि फिटनेस इज़ गोइंग टू बी मेंटेन्ड बाय अ गुड बैलेंस डाइट, गुड एक्सरसाइज, गुड फिजिकल एक्टिविटी, एंड समथिंग जो मैं हमेशा शुरू से बोलती आ रही हूँ, अ हेल्दी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। अगर हम ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो वी विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ पीपल जिनको हम फिज़िकली फिट कह सकते हैं। फिज़िकली फिट होने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जो हमारी नॉर्मल डे टू डे चीज़ें हैं, हर एक चीज़ में एक्सरसाइज है, बट कई बारी उससे ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो एक्सरसाइज को 3 ब्रैकेट्स में डाला जा सकता है। पहला ब्रैकेट जिसे हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं, या जिससे एंड्योरेंस बनती है, बॉडी में स्टैमिना बढ़ता है टू कैरी ऑन डूइंग थिंग्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। सो एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइज है जिससे बॉडी का स्टैमिना बढ़ता है।
दूसरी है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जैसे हम जिम्स में जाके वेट लिफ्टिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं, ऐसी सब चीज़ों से बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। और योगा, बिल्कुल योगा तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट अभी हम एक पूरा डिस्कशन करेंगे योगा पर एज वी आर प्रोग्रेसिंग। और योगा तो फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव हमारे देश का बेस लाइन है। योगा अगर हम अपने रेगुलर डे टू डे रूटीन में ले आते हैं तो सारी एक्सरसाइजेज गेट टेकन केयर ऑफ, बिकॉज नॉट ओनली इज दैट अ फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज़ द एक्सरसाइज फॉर द माइंड, इट इज़ द एक्सरसाइज फॉर द बॉडी, इट इज़ एक्सरसाइज फॉर द सोल। तो योगा तो हर प्रकार से हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। और एक्सरसाइज को ही आगे समझते हुए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज ऑल्सो, जो हमारी रेगुलर, मान लीजिए हम वॉकिंग कर रहे हैं, अगर हम 15 मिनट वॉक कर लेते हैं दैट इज़ गुड एक्सरसाइज। एंड्योरेंस एक्सरसाइज अगर हमें करनी है तो हमें उसको 1 घंटा करना है या 2 घंटा करना है, ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए करना है। बट रेगुलर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हाथ पैर हिला लिए, 15-20 मिनट सैर कर ली, बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लिए। 15 minutes of walk is enough. Yes, we can say that, but at least do 15 to 20 minutes. Daily, on a regular basis. On a regular basis. Should definitely be done. देखिए, अपनी बॉडी के स्टैमिना और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को हर व्यक्ति अच्छे से समझता है। तो अगर कोई आधा घंटा सैर करके उसको लगता है कि हाँ आज मैंने अच्छी एक्सरसाइज की, तो आधा घंटा कीजिए। अगर अपने आप को आप पुश करके कर रहे हैं तो कम से कम 15-20 मिनट करिए। यू विल स्टार्ट फीलिंग कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा काम किया, एंड दैट इन टर्न इज गोइंग टू स्टार्ट हैविंग अ गुड इम्पैक्ट ऑन द well-being, the feeling of wellness that an individual has. But the need is to take that initiative. Yes, the need is to take that first step and to start doing it. अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि दिमाग में तो सब सोचते हैं करना है करना है करना है, बट एक्चुअली टू स्टार्ट डूइंग इट इज़ एन एफर्ट एंड अ फर्स्ट स्टेप। तो जो ये फर्स्ट स्टेप ले लेता है और फिर उसको सस्टेन कर लेता है, I think that is where we have to reach. Well, the first step is waking up early in the morning. नहीं, आप शाम को सैर करना चाहते हैं, आप शाम को करिए। बोला तो ये जाता है कि सुबह की एक्सरसाइज सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है, बट अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं, डोंट वरी, शाम को करिए, रात को करिए, बट करिए। दैट शुड बी द बॉटम लाइन, करिए। बिकॉज ये सब एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी जो हम बात कर रहे हैं, इसको करने से क्या होगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हम अपने सिस्टम में डालते जाते हैं वो बर्न होंगी। एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होंगी तो ओबेसिटी के चांसेस कम होंगे। ओबेसिटी नहीं होगी तो इट विल गिव यू अ गुड फीलिंग अबाउट योर सेल्फ। इफ इट्स गिविंग यू अ गुड फीलिंग अबाउट योर सेल्फ, यू विल वांट टू डू मोर एक्टिविटी। दैट मोर एक्टिविटी आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, रेस्पिरेशन को अच्छा इम्पैक्ट देगी। तो वो हर बात के लिए एक विशियस साइकिल बन रहा है। या तो वो एक पॉजिटिव साइकिल बन सकता है, अगर आप ये सब करते हो तो पॉजिटिव साइकिल बन जाता है, अगर आप नहीं करते हो तो नेगेटिव साइकिल बन जाता है, अगर आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे हो तो नेगेटिव साइकिल बन जाता है, एंड दैट कैन एक्चुअली कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो एक्सरसाइज की इतनी बातें हम कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज के हर प्रकार के बेनिफिट्स हैं। अभी जैसे आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की थी, इन दिस स्लाइड यू विल सी दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू फोकस अ लॉट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। एक यूनाइटेड स्टेट्स में ड्यूक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक स्टडी की गई, कुछ एक सैम्पल ऐसा इकट्ठा किया गया जिन व्यक्तियों को लगभग 4 से 5 महीने से डिप्रेशन की फीलिंग्स आ रही थी। अब इस सैंपल को लिया गया और इनको एक एक्सरसाइज रूटीन दिया गया जिसमें वो हफ्ते में 3 दिन कम से कम लगभग आधा घंटा एक एक्सरसाइज रूटीन में इन्वॉल्व होते थे।
जब बाद में कुछ समय बाद जब इनको दोबारा स्टडी किया गया तो इस सैंपल में से लगभग 60% 60% लोगों को डिप्रेशन मैनेज करना आसान हो गया बिना किसी मेडिकेशन के। सो दैट इज़ द पावर ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि एक नेचुरल पेन किलर माना जाता है। तो जब ये एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, दे ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द एंटायर सिस्टम। जब बॉडी फिजिकली फिट है, फिजिकली हेल्दी है, दैट लीड्स एन इम्पैक्ट ऑन टू द mind and therefore it helps the mind also become in a state of well-being and mental health becomes better. ओके, सो बात ये है कि जब भी फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करते हैं क्या होता है, आज मैंने सोचा आज तो मैं खूब एक्सरसाइज करूँगी, जोश में आके मैंने आधा पौना घंटा पहले दिन खूब एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद क्या होता है, मसल्स टूटते हैं, दर्द होती है, फिर अगले दिन लगता है नहीं नहीं आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, आज मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी। तो वो क्या हुआ, रूटीन बिल्कुल टूट गया। तो उस रूटीन को मेंटेन करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज़, पहले दिन 10 मिनट करो, अगले दिन उसको 20 मिनट करो, धीरे धीरे अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो यू आर एबल टू सस्टेन इट, यू आर एबल टू मेंटेन दी एक्सरसाइज रूटीन एंड उसके बेनिफिट्स भी हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। फिजिकल बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं, बिकॉज इफ़ द बॉडी इज़ ब्रीदिंग हेल्दी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छा चल रहा है, रेस्पिरेशन अच्छा है, चांसेस ऑफ कैचिंग इन्फेक्शंस आर ऑल्सो गोइंग टू गो डाउन एंड इन दैट केस व्हाट हैपन्स, बीमारी नहीं आएगी तो फिजिकल फिटनेस इज़ बेटर, राइट? क्योंकि अगर हम बीमार हो जाते हैं तो रिकवर करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है बॉडी को। सो अगर हम उस स्टेज में ही ना लाएं बॉडी को तो दैट इज़ बेटर। And to be able to do that, what we simply have to do is ensure that we are having a good balanced diet, ensure that we are maintaining a good fitness regime, and ensure that we are building both these things into our lifestyle. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसको अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लें। ये किसी को हमें बाहर से पुश ना करना पड़े इसको करने के लिए, और अपने आप से हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें टू बी एबल टू अचीव दिस। और अल्टीमेटली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली, Before we proceed in the conversation, just a slight information for all our viewers. We still have 30 minutes in this session. We are joined by Dr. Vinu Vatvaji and we are discussing about health and wellness in adulthood. If you have any questions, any queries, do reach out to us in the comment box of ncertofficial. Yeah, ma'am. Yeah, so I'll carry on with what you're saying. आपके कोई भी अगर सवाल हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप बेझिझक होके पूछिए। जितना मैं उसके बारे में आपको बता सकूंगी, मैं पूरी कोशिश करके ज़रूर आपके सवालों के उत्तर दूंगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो हम वेलनेस की इतनी बात कर रहे हैं, इसका किस प्रकार से कनेक्शन बनता है। तो अगर हम दोबारा शुरू से देखते हैं, वी स्टार्टेड विद हेल्थ स्टेटस क्या है कंट्री का, हेल्थ क्या है, फिज़िकल फिटनेस क्या है, एक्सरसाइज क्या है। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू अंडरस्टैंड वेलनेस क्या है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो वेलनेस क्या है? वेलनेस इज़ अ वेरी इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट। अगर हम फिज़िकली ठीक हैं, सोशली खुश हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, बैलेंस्ड हैं, इंटेलेक्चुअली साउंड हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारे एनवायरनमेंटल एक्सपीरियंसेस को साथ में जोड़ते हुए हमें वेलबींग की तरफ ले जाते हैं। वेलबींग को समझने के लिए एक और आगे आपको मैं स्लाइड दिखा रही हूँ। वेलबींग को समझने के लिए या वेलनेस को समझने के लिए व्हाट वी डू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि वेलनेस हमें किस प्रकार से हेल्प करती है। वेलनेस इज़ बेसिकली गोइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अस। ओके, व्हाट डज दैट मीन?
We are physically fit, we are mentally happy, we are spiritually sound, we are intellectually sound, हमारे social relationships अच्छे हैं. All of this is going to give us a feeling of well-being, being good, happy and healthy. Okay, if we are all of these things, so obviously chances of sickness and illness and disease and disability and distress, ये सब D's जो मैंने इतने सारे बोल दिए, ये सारे कम हो जाएंगे. ओके, और जब ये कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फिजिकल बॉडी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी. और जब फिजिकल बॉडी पॉजिटिव है, नॉट ओनली बॉडी से बल्कि माइंड से भी, तो इट विल हेल्प अस इन फॉस्टरिंग गुड ग्रोथ, गुड डेवलपमेंट एंड इट इज़ गोइंग टू प्रिपेयर अस. देखिए, हम अडल्टहुड की बात कर रहे हैं. अगर हम यंग अडल्टहुड से शुरू करते हैं तो इस समय जो हम अपने लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, ये हमारी बाकी की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय के चेंजेस हमारी बाकी की ज़िंदगी पर इम्पैक्ट करेंगे. एज इंडिविजुअल स्टार्ट ग्रोइंग ओल्डर, फिज़िकल एबिलिटीज़ कम हो जाती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है. ऑब्वियसली जब हम घर से बाहर निकलना कम कर देते हैं, सोशल इंटरैक्शंस कम हो जाते हैं. इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ को अगर हम मेंटेन नहीं करें तो वो भी ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाती हैं. एंड इन दैट काइंड ऑफ अ केस व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ कि आगे की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं. जो हम मिडिल अडल्टहुड या लेट अडल्टहुड की अगर बात करते हैं, तो मिडिल अडल्टहुड और लेट अडल्टहुड के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें यंग अडल्टहुड और एडोलेसेंस से शुरू करते हुए हमें लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लाने हैं कि आगे की ज़िंदगी, या जिसे हम बुढ़ापा कह सकते हैं, वो कंफर्टेबली हमारा डील हो सके. सो अब वेलनेस क्या है? बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, एक लाइफस्टाइल चेंज है, एक चॉइस है जो हम ले सकते हैं. वो जो बर्गर और एप्पल वाली चॉइस मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दी, एक कांस्टेंट चॉइस है जो हमारे पास अवेलेबल होती है, जिसे हमें हर समय एक्सरसाइज करना है. और अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के बारे में अच्छी है तो चांसेस ये होंगे कि हम 80 to 90% ऑफ द टाइम्स करेक्ट डिसीजंस लेंगे, जो कि हमारी हेल्थ के लिए कंड्यूसिव हैं, है ना. पर अगर फिर भी हम कई बारी गलत डिसीजन ले लेते हैं और हफ्ते में 6 बारी अगर हम जंक फूड खा लेते हैं, तो ऑब्वियसली उसका असर हमारी हेल्थ पे पड़ेगा और कॉन्सिक्वेंटली मेंटल वेलबींग पे भी पड़ेगा. So wellness, we have to understand, wellness is a choice. Wellness is a way of life. Wellness is a process which we have to follow on a day-to-day basis through the decisions that we are taking. Wellness is holistic. Holistic का क्या मतलब है कि हमें उसको इस प्रकार से हैंडल करना है कि बॉडी, माइंड, सोल और स्पिरिट, हर एक में हम वेलनेस लाने की कोशिश करें. ओके, और वो हम कैसे ला सकते हैं? बाय बीइंग पॉजिटिव, बाय डीलिंग विद चैलेंजेस केयरफुली, बाय टेकिंग द राइट डिसीजंस एंड बीइंग एबल टू मैनेज आवर डे टू डे लाइफ सिचुएशंस वेल. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज वेलनेस? अगर लास्ट स्टेटमेंट मुझे वेलनेस के बारे में बोलनी हो तो वेलनेस विल बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ हु आई एम. ओके, मैं जो हूँ, जिस प्रकार से हूँ, मेरा जो सर्कमस्टेंस है, जो एनवायरनमेंट है, मैं पहले उसको एक्सेप्ट करूँ, फिर उसमें से अपने लिए चैलेंजेस निकालूँ, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करूं उन चैलेंजेस को डील करने के लिए, और उन चैलेंजेस को डील करते हुए मैं आगे बढ़ूं. सो इफ़ आई एम एबल टू डू दिस, आई विल बी इन अ स्टेट ऑफ व्हाट वी कैन कॉल गुड वेलबींग. ओके, और वेलनेस के 8 डायमेंशंस माने जाते हैं. अगर आप ये स्लाइड को ध्यान से देखें, यहाँ 8
अलग तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको आप वेलनेस के साथ एसोसिएट कर सकते हो। सबसे पहले है फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस क्या है? अ नीड टू हैव अ हेल्दी बॉडी, a need to have good physical activity, good diet, good sleep, okay, and good nutrition, right? So all of these things are connected. आप की नींद अच्छी होगी, आप सुबह फ्रेश उठेंगे तो एक्सरसाइज करने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद आपका अच्छी चीज़ें खाने का मन करेगा। उस समय आप करेक्ट डिसीजंस लेके न्यूट्रिशियस हेल्दी खाना खाइए। एंड जब खाना अच्छा है तो बॉडी की फिज़िकल एक्टिविटी भी अच्छी रहेगी। और ये वही जो बार बार मैं साइकिल की बात करती हूँ, ये एक अच्छा साइकिल बन जाता है जो फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। फिर आप दूसरी तरफ चलिए, देखिए सोशल वेलनेस की भी बात हो रही है। सोशल वेलनेस क्या है? टू मेक श्योर दैट यू हैव गुड रिलेशनशिप्स। फर्स्ट गुड रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, then have a good relationship and connection with people around you, जो आपके मित्र हैं, माता पिता हैं, स्कूल की टीचर्स हैं, अगर हम अडल्ट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ आप काम करते हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, सबके साथ टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विल लीड टू गुड सोशल वेलनेस। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं फाइनेंशियल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज सब अच्छे फंड्स के साथ कनेक्टेड है। सो फाइनेंशियल वेलनेस बहुत ज़रूरी है टू हैव सेटिस्फैक्शन दैट द करंट फाइनेंशियल स्टेटस दैट आई एम एट is good and I can make it better. That will give us good financial wellness. Emotional wellness is really very very important. Okay, what does emotional wellness mean? आजकल IQ से ज़्यादा EQ को importance दिया जाता है, emotional quotient. ओके, IQ होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। आजकल इंटेलिजेंस और जो इंटेलिजेंस को मार्क्स से रिलेट किया जाता है वो तो सब अचीव कर लेते हैं, बट टू हैव एन इमोशनल बैलेंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, नो हाउ टू मीट पीपल, टॉक टू पीपल, इंटरैक्ट विद पीपल इन रियल लाइफ सिचुएशंस, दैट इज़ इमोशनल वेलनेस, जो बहुत ज़रूरी है स्पेशली आजकल की ज़िंदगी में। फिर आता है environmental wellness. Environmental wellness is going to bring to us good health, is going to bring to us a stimulating environment, is going to bring to us good support from people around us who are part of our environment. जब ये सब अच्छा होगा तो environment wellness भी आ जाएगा। A very important aspect is to have very good intellectual wellness. Okay, to challenge the mind, to create situations where you're gaining knowledge, adding to your knowledge, adding to your skills, being creative, developing creative abilities, and finding answers to simple questions on a day-to-day basis. That would be intellectual wellness. Okay, then we come to occupational wellness. अब ये occupational wellness क्या है? Since we are talking about adults, adults are constantly in work situations. अगर work situation आपके लिए pleasant है, अगर जहाँ आप काम करते हैं और जो आप काम करते हैं वो आपका passion है, तो occupational wellness अपने आप आ जाएगी। Okay? और ऑक्यूपेशनल सिचुएशन में अगर आपके जो को-वर्कर्स हैं वो फ्रेंडली हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वंस अगेन ऑक्यूपेशनल वेलनेस आ जाती है। ये तो हुए 7 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या डायमेंशंस ऑफ wellness. The last and most important dimension is what is called the spiritual dimension. Now, what does the spiritual dimension talk of? It basically talks of expanding our sense of purpose and meaning in life. What does that mean? कि हमें
लाइफ में सिर्फ जीना नहीं है, जीना है to be able to do good things not only for the self but for society, but for the country, to basically be able to have a purpose in life. Okay, जैसे टीचर्स का पर्पस होता है to educate their students, to make them do well, to make them understand themselves well, to tap their potential well. ये एक टीचर का स्पिरिचुअल पर्पस होता है. इसी प्रकार आप हर प्रोफेशन को देख सकते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, हर प्रोफेशन को आप देखिए, दे हैव अ मीनिंग इन लाइफ. ओके, और उस मीनिंग को अगर वो अपना सही डायरेक्शन से चलते रहें, दैट विल लीड टू व्हाट वी कॉल स्पिरिचुअल वेलनेस. ओके, नाउ व्हेन ऑल ऑफ दिस इज देयर and it is supporting us well, what does it bring us to? It brings us to an understanding कि हम physically fit हैं, हम mentally sound हैं, happy हैं, और wellness या well-being is a part of our system. ये सब तो हो गया positive. Problems तब आती हैं जब इन सब चीज़ों के साथ हमारी लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है. ओके, स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एक आपने सुना होगा पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है. नेगेटिव स्ट्रेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस जो हमारी नॉर्मल डे टू डे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है. अगर हमें किसी नए पर्सन को मिलना है, इतना स्ट्रेस हमें हो सकता है कि हम बोले नहीं नहीं मैं तो बीमार हो गई, मैं तो उसको मिल ही नहीं सकती. दैट कैन बी नेगेटिव स्ट्रेस. बट इफ एट दैट टाइम द स्ट्रेस इज पॉजिटिव, जिसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं, दैट विल गिव अस मीनिंग, अ पर्पस, एंड इट विल टेक अस टू मीट दैट पर्सन. एंग्जाइटी होगी बट वी विल बी एबल टू परफॉर्म वेल. यू स्ट्रेस is beneficial. It will motivate us. It will help us to deal with situations. It will energize us to perform well and to be efficient in situations. But the problem is अगर distress आ गया और stress distress में convert हो गया, तो that will affect us physically, that will affect us mentally, that will affect us in a way कि हम day to day life situations को भी आराम से नहीं डील कर पाते हैं. अब ऐसे केस में क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है? स्ट्रेस को मैनेज करना है. ऐसी चीज़ नहीं है ये कि कोई मैनेज नहीं कर सकता. हमें सिर्फ ऐसी चीज़ें करनी हैं कि उस स्ट्रेस को हम सही डायरेक्शन देके डिस्ट्रेस से हटा के पॉजिटिव स्ट्रेस या यू स्ट्रेस में कन्वर्ट करना शुरू कर दें. उन चीज़ों को करने के लिए क्या हम कर सकते हैं? अभी मैंने आपको बोला था कि हम योगा के बारे में डिस्कस करेंगे. योगा एंड मेडिटेशन आर वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कन्वर्ट स्ट्रेस इनटू पॉजिटिव स्ट्रेस. ओके, बिकॉज वो हमारी बॉडी को, माइंड को, सिस्टम को, बॉडी ऑर्गन्स को हर प्रकार से काम करने में सक्षम है अगर हम योगा को अच्छे से फॉलो करें, योगा के रूल्स को फॉलो करें. योगा नॉट सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पे, बट योगा को अगर हम अपने आप में इम्बाइब कर लेते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज to overcome negative stress that can actually impact our physical, social, mental well-being. Okay, so that is yoga and meditation. मान लो कोई योगा नहीं कर पाता, मेडिटेशन नहीं कर पाता, बैठते हैं करने पर नहीं कर पाते, इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाएंगे. बहुत सारे और तरीके हैं. योगा बहुत अच्छा तरीका है, बट बहुत सारे और तरीके हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करिए. अब एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि फिज़िकली एक्सरसाइज करिए. म्यूज़िक जो आपको अच्छा लगता है आप वो सुनिए बैठ के. वो आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपके थॉट प्रोसेस को काम कर सकता है. जो म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है वो सुनिए.
कामिंग म्यूज़िक सुनिए, दैट कैन बी रिलैक्सेशन फॉर यू। अगर आपको फ्रेंड्स को मिलके माइंड रिलैक्स होता है, फ्रेंड्स को मिलिए, उनसे बातचीत करिए, दैट इज़ अ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। अगर आपको फिज़िकल एक्सरसाइज करके ही रिलैक्सेशन मिलता है, वो करिए। आपको ऐसी चीज़ें ढूंढनी हैं जो आपके सिस्टम को, आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं। Healthy diet is one of the best things to ensure that the mind and body are stress free. Diet की बात तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, that continues. Diet is really very important. Spend time doing the activities that you like. आपको नेचर में प्लांट्स के साथ गार्डनिंग करने में मज़ा आता है, वो करिए। आपको ओपन में बैठ के किताब पढ़ने में मज़ा आता है, वो करिए। आपको बेसिकली द आइडिया इज़ कि आपको ऐसी चीज़ें करनी हैं जो आपके माइंड को, आपके थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से रिलैक्स करें। टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू इंश्योर कि सिस्टम में, बॉडी में स्ट्रेस ना आए। मान लीजिए आपने अपने दिन के प्लान में 10 चीज़ें प्लान की हैं कि आज मैंने ये 10 चीज़ें ज़रूर करनी हैं, ठीक है। पूरा दिन निकल गया, आपने केवल 1 या 2 चीज़ें की क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था। 8 चीज़ें फिर भी बच गई, क्या होगा? ऑब्वियसली माइंड दोबारा स्ट्रेस में आ जाएगा कि ओहो, आज तो मैंने इतना कुछ करना था, मैं नहीं कर पाई। अब कल के लिए दोबारा टेंशन, कल के लिए दोबारा स्ट्रेस। तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें और जो हमारी वर्क रिक्वायरमेंट्स हैं या स्कूल रिक्वायरमेंट्स हैं या सबमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं या डेडलाइंस हैं, अगर हम उनको ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को समय अनुसार अच्छे से करें तो अपने आप स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, कोई हॉबी डेवलप करिए। किसी को म्यूज़िक सुनने में मज़ा आता है, किसी को म्यूज़िक बजाने में मज़ा आता है, किसी को गाना गाने में मज़ा आता है। कोई सोचे कि अब तो मैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कोई नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर देता हूँ। That can be a nice way of relaxation. So basically हमें अपने आप को समझते हुए, अपने सिस्टम को समझते हुए, अपने माइंड को समझते हुए ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जो हमारे माइंड, बॉडी और सिस्टम को पूरी तरह से रिलैक्स कर दे। And that is one of the best ways of coping with stress. जब हम फ्रेंड्स को मिलते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, उस समय सारे टेंशन्स ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि फोकस आ जाता है ऑन एन्जॉइंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। सो टॉक टू योर फ्रेंड्स, मीट फ्रेंड्स, इंटरैक्ट विद देम, फाइंड पीपल जिनके साथ आप अपने मन की बात को शेयर कर सकते हो, जो आपको ठीक गाइडेंस दे सकें, जो आपको ठीक एडवाइस कर सकें। जब हम ऐसी सिचुएशंस में ऐसे लोगों के साथ बातें करते हैं, वो हमें कई बारी अपनी प्रॉब्लम का हल और उसका आंसर इस तरह से दे देते हैं कि वो हमें ऑलरेडी पता होता है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू गेट एट, कि सिचुएशंस को इस प्रकार से हम डील करें कि स्ट्रेस ना बढ़े और हमारी डे टू डे लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, रिलैक्स्ड हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा खाना खाइए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने बॉडी को समझिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को समझिए और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ बॉडी को लेके चलिए। बिकॉज what is going to happen in the initial stages of adulthood is going to carry on right up to old age. So we have to ensure कि इस लाइफ के इस स्टेज को हम बहुत अच्छे से निभाएं ताकि हमारे आगे की सालों के लिए, आगे की लाइफ के लिए, आगे के जीवन के लिए हम अपनी बॉडी को हेल्दी, हैप्पी, एक्टिव एंड यूज़फुल बना के रखें। बिकॉज नोबडी विल वांट टू बी इन अ स्टेट जहाँ आपको लगे कि मैं
ना अपने लिए यूज़फुल हूँ, ना अपनी फैमिली के लिए यूज़फुल हूँ, ना सोसाइटी के लिए यूज़फुल हूँ. सो इफ़ वी डोंट वांट टू गेट टू दैट काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस, उसके लिए हमें तैयारी अडल्टहुड के शुरू में ही करनी है. और जो आज के सारे डिस्कशंस रहे उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी लाइफ को आगे लेके चलना है. सो आई होप विद दिस Yeah, wise words from your end, Dr. Venu. I think we have covered all the important topics. Do you have anything else to add, or we might continue with the questions? We can continue with questions because that might bring out topics that have not been touched upon. All right. So there are two terms that often come in front of us. The first one is being alone, and the second is being lonely. Now there's a difference between both of them. If you would like to tell that. Okay. Now this is really important, and I think this is one of the important things that we just talked about. Okay, being with friends, we just mentioned, is important. So having friends is going to be a really important aspect. Being lonely would mean मेरे कोई मित्र नहीं हैं, मेरे कोई दोस्त नहीं हैं जिनसे मैं अपने मन की बात शेयर कर सकूं. Being alone I might want to do sometimes because वो मेरे माइंड को काम करता है, मेरे थॉट प्रोसेस को सोचने का, समझने का और मेरे आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं उनको समझने का सही रास्ता दिखा सकता है. But being lonely, nobody would want to be in that kind of a situation. So we have to ensure that we develop good relationships, that we focus on that aspect so that there is good social wellness and leads to good social well-being. Right? Yeah, so I hope I've answered your goal, question. Rightly answered. So I think the ultimate goal is to remain well. Absolutely. To remain well, eat well, exercise well, ensure good fitness, and you will be well, and there will be what we can call good well-being. Okay, so health and wellness go hand in hand. Health and good nutrition go hand in hand. Health and good exercise go hand in hand, and all of this is the requirement for good well-being, good health, good wellness. Yep. And as we were discussing about the 8 dimensions of wellness, one of them was environmental wellness. Right. Now we all live in a digital era where we stick to our mobile phones. We are more connected to our devices than to the people who are around. Why is it so important to socialize and to remain grounded and connected to the nature? That's really very important, and I think especially in today's scenario, especially with the pandemic, जहाँ सब कुछ ही स्क्रीन के द्वारा होने लगा, वर्क, क्लासेस, सोशल इंटरेक्शन सब स्क्रीन के द्वारा होने लगा. इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर कि ना सिर्फ हम स्क्रीन के थ्रू लोगों को मिले, बट एक्चुअली फिज़िकली लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बॉडी टच या बॉडी इंटरेक्शन या फिज़िकली एक दूसरे को आमने सामने पाकर, देखकर जो हमारे फीलिंग्स एंड इमोशंस मैनेज हो सकते हैं, वो स्क्रीन के द्वारा नहीं मैनेज हो सकते. आजकल इन एनी केस हमारे सोशल मीडिया पे तो बहुत फ्रेंड्स होते हैं, हर एक के सोशल मीडिया पे 100-200 जाने कितने नंबर फ्रेंड्स होते हैं, बट ऐसे फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है जिनको जब आपकी ज़रूरत हो आप फिज़िकली अपने पास बुला सकें, उनसे बात कर सकें, उनसे आप अपने हैप्पीनेस, सैडनेस, हर तरह की इमोशनल फीलिंग्स को आप शेयर कर सकें. ऐसा फ्रेंड सर्कल या ऐसे एनवायरनमेंट या ऐसे सोशल रिलेशनशिप्स होना बहुत ज़रूरी है. So the environment is not just our friends, the environment is also our physical environment. We need to spend time with nature. Okay, we need to spend time with Mother Earth, right? We need to be out in the open. We need to spend time in the sun. जितनी एनर्जी हमें सन के थ्रू मिल सकती है, कुछ स्क्रीन के सामने बैठ के नहीं मिल सकती. स्क्रीन से तो उल्टा यूवी रेज मिल जाते हैं बॉडी को, जो कि बॉडी के लिए अच्छे हैं ही नहीं. सो जितना स्क्रीन टाइम ज़रूरी है उतना ज़रूर करिए, बट उसके अलावा
find time to be out in the open, to be with nature, to be with your friends, and to enjoy life away from screens, away from phones, away from laptops. Please do that. Yeah, very wise words from your end. I think it is important to remain well on social media, and more important is to remain well in your real lives. Thank you so much, Dr. Veenu Vathvaji, for coming Thank to you the so studio and much. enlightening us about such an important topic that says much about health and wellness. One of the best takeaways from this session was a statement by you that wellness is a way of life and the choice is yours, so choose wisely. Thank you so much. Thank you so to all the much. viewers who have joined in for the session. We'll be back within a few minutes with another session of class 12, and the subject would be psychology, and what we'll be studying in the session, that is a suspense. So stay connected to NCRT. Namaskar.